Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, as I have been sharing with you a number of innovative strategies so that you can bring engagement, excitement, innovation in your classes. So, in continuation with that, I'm going to share with you something that is very much required for the head of the organization, head of the institute, HODs, vice principals, principals, and even all those teachers who are pursuing B.Ed or M.Ed, right? So they have to appear in the examination. So as per that, this is there in the syllabus also, like principles of educational administration. So we're going to talk about different principles that are required in an effective administration, right? So चलिए बात करते हैं educational administration के principles के लिए, and we will be talking in both the languages, Hindi and English, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स इसको समझ पाए. तो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. So and on the screen right now, I have highlighted 12 principles, right? As you can see here, principle of planning. Planning के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, डायनेमिज्म क्या है, जस्टिस का क्या मतलब है, फ्रीडम क्या होना चाहिए, किसको होना चाहिए फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, कॉम्पिटेंसी, रिसर्च, ग्रोथ, इक्वालिटी, इवैल्यूएशन, शेयरिंग, लीडरशिप. तो ये 12 प्रिंसिपल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे. विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल. First of all, it's principle of sharing. We have been teaching our students also sharing is caring, right? We need to share. Whenever we are working in a group, in an organization, as a teamwork, we need to share. Now, what to share? We need to, first of all, we need to share the goal or the vision. एक स्कूल का आप देखिए, आप हमारी एलुमनाई आप नहीं खोलिए, उसके ऊपर स्कूल का विजन लिखा होता है, एक मिशन लिखा होता है. क्या वो सिर्फ एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की या HODs की? Each and every person who is associated with the school in any way, in any aspect, that is his or her responsibility. That is a shared responsibility. That is a shared vision. हमें अपना गोल, अपना विजन, अपने स्कूल के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है. टीचर्स विजन के अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो अलाइन करेंगे. जो प्रिंसिपल है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करेगा कि इस तरीके की जो मेरा विजन है उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, मुझे टीचर्स को कैसे एम्पावर करना पड़ेगा, मुझे स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, मैनेजमेंट को भी उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि इस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इनका विजन ये है. So I have to facilitate the teaching learning process at home also, right? As it is being guided by the teachers in the school. So my lovely educator, सबसे पहले आता है principle of sharing, and that is really very important. School administration should be based on mutually shared purposes. We should have a mutually shared purpose or a goal. If sharing becomes the principle of administration, all administrative problem will become the problem of all. तो ये एक बंदे की, एक जो पर्सन की, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम ना रहकर कोई अगर प्रॉब्लम होती है, दैट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर ऑल. तो उस चीज के लिए सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए भी ईच एंड एवरी पर्सन विल join the hand, they'll brainstorm together so that they'll be able to find the solutions together to the given problems. So the participants must have to share in planning, execution and evaluation. जब एक इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ प्लानिंग किया जाता है कि आगे हमने क्या करना है, तो उस चीज के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन हर एक का हिस्सा होने चाहिए वो स्टेक होल्डर्स. ऐसा नहीं कि प्लान कर लिया है तो प्लानिंग किसी और ने करी है, एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है, इवेल्युएशन कोई और थर्ड पार्टी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दे ऑल शुड डू टुगेदर. जो ऑर्गेनाइजेशन में एक PDCA का साइकिल होता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट. सो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट शुड बी अ part of that. Development of policies, plannings, it becomes the joint responsibility of each and everybody who is participating in that. जब हम students के लिए voice and choice की बात कर रहे हैं, तो that should be there for the each and every person. Teachers के लिए भी होना चाहिए, right? Voice and choice कि अगर वो जिस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी से भी तो होनी चाहिए, बताएं कि हाँ हमें क्या करना है, what are their views in planning, in execution and in evaluation. And the principles of sharing, it puts more brains together for the better work, right?
एक से भले दो, दो से भले तीन, राइट, और मे बी एक और एक 11, इसको जिस तरीके से भी हम समझे। सो प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम, आजादी, कैसी आजादी? 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, राइट, एंड ताकि हम अपने विचार व्यक्त कर सके, हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हैं, राइट, राइट टू वोट है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे हैं, राइट, हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे जो हैं वो फ्रीडम के लिए डिफरेंट राइट्स हमें दिए गए हैं, राइट। तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की, तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहां पर हर टीचर, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज एसोसिएटेड like in the organization, with the organization, in any of the ways, in any of the aspects, उनको एक फ्रीडम होना चाहिए अपने थॉट्स को शेयर करने का। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, अ टीचर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द क्लासरूम, तो उसको अपने इनोवेटिव वे में पढ़ाने का फ्रीडम होना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट कर रहा है, उसको अपने बच्चों को पता है देयर आर डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स इन द क्लास, लाइक वो एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाना चाहता है, ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है, क्लास में बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करके उनको इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप बिठाना चाहता है, डिवाइड मतलब डिफरेंट विजिबल थिंकिंग रूटीन्स को हम यूज कर रहे हैं, वॉट एवर द वे द टीचर वांट्स टू टीच, तो थोड़ा सा उसको फ्रीडम देना चाहिए, राइट। तो पर हाँ, उस चीज के लिए सुपरविजन कर रहे हैं, आई मीन द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, तो उनका कंसेंट लेकर एटलीस्ट कि आई वांट टू टीच इन दिस एंड दैट मैनर, तो वो एक टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करके जरूर उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सो माय लवली एडुकेटर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना एक इंडिविजुअल के बस की तो बात नहीं, दैट इज नॉट अ वन मैन आर्मी, वन मैन शो। तो इस चीज के लिए तो वी हैव टू वर्क टुगेदर, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, it works here, as you can see here as a quote written by John Dewey, I mean his thoughts on principle of cooperation: a society which makes provision for participation in good of all its members ऑन इक्वल टर्म्स। ऐसी सोसाइटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जितने उसके मेंबर्स हैं हर एक को पार्टिसिपेट किया जाता है ऑन इक्वल टर्म्स, मतलब हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंड फ्लेक्सिबल जजमेंट, इंटरेक्शन इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसी को हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दस प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। सो and more details want to share about principle of cooperation. As you can see here, the thoughts of W.H. Reban: the pupils of the school, if they are to develop the characteristics of cooperativeness, must live when in school, in a society, in a practical way, provides a living example of cooperation. वो बच्चों की हर deed में reflect होना चाहिए कि yes, what they are learning cooperation, they are learning to cooperate with each other, right? उस चीज के लिए हमें various cooperative teaching strategies को include करना होगा क्लास में, so that that will become part and parcel of their life, right? So each and every person who is concerned with the process of school administration must follow the principle of cooperation. ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहते हैं, क्या अकेले हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं? अलोन वी कैन नॉट सर्वाइव, we need to work together with each other. So that says that is being reflected by principle of cooperation. Next comes the principle of justice. The head of the institute should not show undue favoritism नहीं होना चाहिए किसी भी organization में, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए. Each and every person should be given due importance, like it should he should follow full justice to all. Respect for justice quickens the solution of the problems and disputes, right? And lack of justice leads to non-cooperation among the persons involved in the process of learning. अगर आपका कुछ undue favoritism आप किसी को show करते हो, obviously those organizations will not be able to survive in the long run. Due respect must be paid to the rules and regulations, right? रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बनाए जाते हैं तो उनको प्रॉपर फॉलो भी करना चाहिए. दैट इज देयर इन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. सो हियर नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. सो दैट वाज देयर राइट इन द सेंटर. सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं. So during planning, institutions head pays attention to the needs of the school. सबसे पहला स्टेप क्या है? नीड एनालिसिस.
कि स्कूल की, बच्चों की, टीचर्स की, स्टेक होल्डर्स की, सपोर्ट स्टाफ की क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, नीड एनालिसिस करना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंगली एम्फसाइजेस दोज आइटम्स दैट नीड स्पेशल अटेंशन, उसको प्रायोरिटाइज करना कि सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, किसके बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा, व्हाट कैन बी डन later on or maybe in the next academic session, maybe after 6 months, right? How it is to be done. So that has to be planned. So professional activities are focused on achieving educational objectives through planning. Rather than routine inspections or vague observations, it makes school administration more focused. प्लानिंग होगी, प्रायोरिटाइजेशन होगा, तब जाकर उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, प्लानिंग भी कैसे होगी, नीड फोकस्ड। तो अकॉर्डिंगली that organization will have a clear vision and they'll be able to design a clear roadmap to achieve that vision, right? It is essential to plan effectively and उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, better coordination, communication should be proper, right? And all the concerned who are involved, उनके पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करनी चाहिए। एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाती हैं, अगेन कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। बहुत बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी के पास पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन तो है बट उसका इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, एरिया में। सो फिर उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू उसी को काम देंगे ना कि जिसको इंटरेस्ट आए, राइट? जिसका काम उसी को साजे, किसी दूसरे को देंगे तो वो काम सक्सेसफुल भी नहीं होगा, अनमने मन से काम किया जाएगा तो वो कोई अचीवमेंट नहीं होगा, किसी के ऊपर बर्डन देके कोई फायदा नहीं है, राइट? अगर काम आपका ही बिगड़ता है, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज के लिए जैसे हम स्टूडेंट्स को लेसन प्लानिंग बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं लेसन प्लान। तो हमने क्या, कौन सी हमारी आउटकम्स हैं, उसको सामने रखकर फिर हमें प्लानिंग करनी है, राइट? अकॉर्डिंगली प्रोसीजर जो है वो हमें फाइनलाइज करने, उसके स्टेप्स को वी कैन ले आउट, राइट? तो माय लवली एजुकेटर, दिस वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी है, प्रायोरिटाइज करना है कि हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए सबका इन्वॉल्वमेंट और जैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करनी है, दैट शुड बी according to their qualification, their interest, and their expertise. Okay, so accordingly we have to do it. So next, talk about principle of research. There are several techniques, procedures, and practices used in school administration. Education research can help in this field by adopting proper techniques and procedures. Research is really very important. Action research का recently NCERT के पोर्टल पर मैंने शेयर किया था, दीक्षा पोर्टल पर एक्शन रिसर्च का जो है एक ट्रेनिंग जो है हमारी सेल्फ पेस मॉड्यूल है। यू कैन गो हेड विद दैट, आई कैन अगेन शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड चेक ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज गो हेड विद द एक्शन रिसर्च ऑल्सो। एंड उस चीज के लिए इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इट ऑल्सो रिकमेंड्स नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च शुड बी कंडक्टेड ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे जो है हम वी कैन ओवरकम दोज challenges, right? So principle of research says we need to sit together, we need to brainstorm, we need to talk about the different problems that we face. So for that also we need to consider all. देखिए, सारे जो प्रिंसिपल्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, राइट? अगर रिसर्च की बात हो रही है, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उस चीज के लिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो होना चाहिए, राइट? सो दैट शुड ऑल्सो बी देयर एंड वी शुड बी फ्लेक्सिबल। वो हम आगे फ्लेक्सिबल वाले में भी बात करेंगे कि वी शुड बी रेडी टू अकोमोडेट द न्यू थॉट्स, राइट? उनके लिए प्लेस होना चाहिए, वी शुड नॉट बी रिजिड। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। जो हमारा थॉट है PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, उसका बार बार चेक पॉइंट तो होना चाहिए ना कि क्या हम सही कर रहे हैं, वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। टू असेस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी अडॉप्टेड. Evaluation also helps to understand the defects in the program and to modify these defects by changing the nature of school administration. Evaluate करना चाहिए, check points होने चाहिए, like whether you are doing it yourself, you are
Yourself means not even a single person I'm talking about. I'm talking about all those who are involved in that. यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी को भी साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो उनके व्यू पॉइंट्स को लेने के लिए. तो प्लीज मेक श्योर टू इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. एज आई वाज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, रिजिड होकर कहीं काम नहीं चलता है. To achieve better policy and approach results, democratic administration do not follow stereotypical ideas. पुराने ख्यालात, अब सोचो कि जिस तरीके से हम पढ़ते चले आ रहे हैं या हमें पढ़ाया चला जा रहा है, जो हमारे टीचर्स पढ़े हैं, क्या उसी तरीके से हम आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे? नो, that should not be done. So we have to be very flexible to give space to the changes, right? Be the change you want to see in the world. So the plan of action is modified based on experience and the constructive advice of the colleagues. So next one is principle of dynamism. The principle of dynamism is about responding to the challenges of the next decade. अब हर बार बात किया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जो पढ़ा रहे हैं उनको किस फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी जॉब्स के लिए, कौन से बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो उस चीज के लिए हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हम आगे की सोचे कि पता नहीं इन्होंने कैसे वर्ल्ड में जाना है. सो we should be able to inculcate 21st century skills in our learners. उसके लिए हमें भी 21st century वो skills reflect होनी चाहिए, right? And it means having a business model that is flexible and able to adapt to the changing environment, right? नहीं तो survive ही नहीं कर पाएंगे. Survival of the fittest, that is the key. It is about understanding the value you create for the communities you serve, whilst considering the needs of those like who are yet to reach. हम जिन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं कि क्या करना है, उस चीज के लिए, उस वर्ल्ड के लिए बच्चों को हमें तैयार करना है. It has passed through many ages and stages in the process of evolution, and at every stage it acted differently according to then existing social conditions. Hence, in dynamic education, dynamic administration is needed. It should not be conventional. It should be innovative. It should be dynamic, right? So now next principle is principle of leadership. Educators who lead modern schools should be democratically accountable. It's imperative that he or she values the dignity and worth of each and every individual. Humans, they are paramount. And all the things, like they should be for their welfare. A society that consists of individuals who are at their peak is the one in which all their potential is realized. आपके स्कूल में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक टीचर में क्या क्या कैलिबर है, क्या क्या टैलेंट है. यू सी ईच एंड एवरी चाइल्ड इज, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक. तो उनमें अपनी कुछ खूबियां होती हैं. तो उन खूबियों को आगे लेकर उनको वैसी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली. दैट इज the, you see, trait of a good leader. So principle of leadership should be there, right? Individuals intellectual abilities can be useful in solving problems. To solve common problems, one also relies on, you see, corporation group activities. So that is really very important. So leadership वही है जो दूसरों की लीडरशिप क्वालिटीज को पहचान कर उन्हें वैसा जो है वो मौका दे आगे आने का. राइट नाउ इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू मोर पॉइंट्स. लाइक एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स टू. The welfare of each mentor of the group ensures the welfare of the all. सबकी भलाई सोचने के लिए पहले हर एक इंडिविजुअल की जब भलाई के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे. कोऑपरेटिव डिसीजंस आर मोर वैलिड देन इंडिविजुअल डिसीजंस. सब मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें एंड देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट इज बेस्ट. पोलिंग करें, इंडिविजुअल की राय लें एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू डिसाइड, यू विल बी एबल टू कंक्लूड. एक पर्सन नहीं होना चाहिए कि ऑलवेज की डिसाइड करे कि व्हाट इज टू बी डन. Growth occurs within rather outside of the groups. Growth कैसे? सबकी ग्रोथ में ग्रोथ है, नहीं बाहर से तो कोई नहीं आएगा. Together we have to sit together, we have to work together, we need to brainstorm to achieve the goals. And democracy is accepted as a way of life. We हमें समझना पड़ेगा. And it is extremely crucial to trust and rely on others.
डेमोक्रेसी ही इस लाइफ को आगे बढ़ने के लिए प्रिंसिपल जो है, इट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एंड इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल टू ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन अदर्स। बहुत ही जरूरी है दूसरे के ऊपर भरोसा भी करना है, राइट? सो एंड देयर इज अ ग्रेट डील दैट ईच मेंबर कैन कंट्रीब्यूट टू दीज एरियाज ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ स्कोप ऑफ रिलाइंग ऑन ग्रुप प्रोसेसेस टुगेदर। वी शुड वर्क इन अ कोऑपरेटिव a collaborative environment, and everyone should be recognized for their growth and development. मतलब कि हर एक को मौका मिलना चाहिए ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। दैट इज ट्रू लीडरशिप, राइट? एंड more about principle of leadership is the value of everybody is unique. Each and every person is unique. A democratic leader is the one who recognizes and values the dignity and worth of every individual. वो होता है डेमोक्रेटिक लीडर। आपके स्कूल में जितने टीचर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनकी इंटरेस्ट और उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली मौका दिया जाए, उनकी वैल्यू की जाए। ही और शी इज अ ट्रू लीडर। Democracies emphasize the importance of the individual. Having a complete understanding of each member of his staff is a leader's responsibility, right? Hamari, being a leader, it becomes a responsibility, and it is essential that he or she assigns tasks judiciously and ensures that square pegs fit into square holes. जबरदस्ती वाला काम किसी को देंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं आएगा, राइट? एक हाइपोथेसिस है ना, स्क्वायर पेग फिट्स इन द स्क्वायर होल, सर्कल पेग फिट्स इन द सर्कल होल। so accordingly, right, key and lock hypothesis बायोलॉजी में पढ़ा है, right? That is to be followed being a good leader. So that is the principle of leadership, right? कोई जरूरी नहीं है कि एक टीचर अगर आपका बहुत अच्छा एकेडमिक्स में है, को करिकुलर में नहीं भी हो सकता है, तो जबरदस्ती उसको उसमें भेजने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो हेड विद another teacher also, like unless until the child teacher is himself or herself is willing to come forward, so you can go ahead with that, right? So that is the principle of leadership. Next is principle of participation. All policies, all the activities that affect an individual are subject to democratic participation and sharing. Each teacher has an opinion about the school policy and problems that he would like to express to the school administrator. स्कूल की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है। पहले तो ये बताया गया कि उसमें टीचर्स को, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए इन दैट प्लानिंग, इन एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, तीनों जो स्टेप्स हैं, राइट? और उसके साथ में टीचर्स को इतना होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर पाए उन पॉलिसीज के लिए, उनके जो व्यूज हैं, ठीक है, ऑनेस्ट व्यू अगर वो शेयर करना चाहें तो वो देयर शुड बी गिवन दैट राइट टू शेयर, ओके, उनको वो फ्रीडम होना चाहिए। बट उस चीज के लिए भी एज टीचर्स भी हमें ये सोचना है कि वी शुड इवन ओनली शेयर द रेलेवेंट पॉइंट्स। सिर्फ आर्गुमेंट करने के लिए या वो चीजें करने के लिए कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हर चीज के लिए क्रिप करने की तो वो जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि पॉजिटिव वे में ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी टीचर, ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर शुड बी फ्री टू शेयर द थॉट्स। सो पार्टिसिपेशन करने का मौका हर एक को देना चाहिए। Consequently, it's essential to give each teacher the opportunity to fully apply his individual intelligence to the solutions of common problems, right? तो मतलब हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी. It's necessary for democratic administration to entrust administration to competent individuals. It is possible for everyone to be an efficient administrator, right? हर एक कोई efficient administrator तो हो नहीं सकता, right? किसी में कुछ 19-21 कमी पेशी तो होती है, राइट? तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, हम हर एक फील्ड में कॉम्पिटेंट तो नहीं हो सकते। आई कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई कैन बी मास्टर ऑफ वन, राइट? फॉर दैट जो बाकी ट्रेड्स हैं, बाकी एरियाज हैं, उस चीज के लिए मुझे दूसरों को भी मौका देना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसेस को पहचान कर उनको राइट प्लेस पर फिट करना चाहिए, राइट? सो दैट टुगेदर शेयर्ड गोल को हम अचीव कर पाए, राइट? सो उनकी, एज यू कैन सी, उनकी बायोलॉजिकल सीनियोरिटी को ही सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि ये बायोलॉजिकली सीनियर है, उनकी कॉम्पिटेंसेस को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। यंग टैलेंट कितना आ रहा है, जिनको कि इतना ज्यादा नॉलेज है, जिनमें कॉम्पिटेंसेस हैं, दे आर सो फ्लेक्सिबल, दे आर सो डायनेमिक,
राइट तो जरूर उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एज फैक्टर को कंसीडर करके ही उनको आगे प्रमोशन या आगे ऐसे का जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो असाइन होने चाहिए। दैट शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, राइट? सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। Education should be provided with equal opportunities under democratic administrators. Nevertheless, it's unfair to give equal opportunities to students with unequal abilities. राइट अब हम कहेंगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, सबको बराबर बराबर यही देंगे, राइट? तो अनइक्वल एबिलिटीज हैं और हमने बराबर बराबर सबको दे दिया। वो एक इमेज आप सबने देखा होगा ना, वो जिसमें कि हम बात करते हैं इक्विटी की, इक्वालिटी की, सबको बराबर दिया है या नीड बेस्ड दिया है, जिसको कितनी रिक्वायरमेंट है उतना दिया है, या फिर हमने बैरियर ही हटा दिए। दैट इज जस्ट, राइट? सेल्फ बेस्ड उसकी हम बात करते हैं, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी, whether being just, so we हमें critically evaluate करना है being leaders. There is no doubt that individuals differ in every respect among themselves according to educational psychology. कोई हर जो individual है वो unique है, and each individual has different capacities, attitudes, aptitudes. So equalization of educational opportunities should be based on individual differences. So that comes the principle of equality. हर एक को मौका देना चाहिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंगली। एंड जहां पर हमें थोड़ी ज्यादा पता है कि इसको और आगे लाने के लिए थोड़ा सा और सपोर्ट की जरूरत है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो नाउ जस्ट रादर देन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। नाउ इक्वल अपॉर्चुनिटी की जगह पे क्या है, हम जस्ट की बात करते हैं। लेट्स बी जस्ट, राइट? पहले हम इक्वालिटी की बात करते थे, फिर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, फिर हम जस्ट, लेट्स बी जस्ट, राइट? तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेंडर बेस्ड जो है वो हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, या मे बी किसी रिलीजन के अकॉर्डिंगली कोई पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं वो अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी equal based on talent, based on competency. Each and every person should be given an opportunity to come forward, to share the thoughts, to equally contribute to achieve the vision of the school and in laying out the roadmap or maybe the mission, right? So this is again there in principle of equality. हम इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। इक्वालिटी में जेंडर की बात कर रहे हैं, चाहे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, ठीक है, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी जस्ट। ओके, so that is there. So my lovely educators, these were a few principles of educational administration that is really very important for you all, especially B.Ed or M.Ed के students के लिए. If you really like this initiative of sharing my resources, my learning with all of you, do subscribe to my channel. Click on the like icon, hit the like icon, and do share your valuable feedback in the comment section below. Share such videos, this links in your community as well. Thank you. Have a nice day from Meenakshi Narula.